Good morning. So today we are going to start lesson 11 of Modern India Tamil Nadu class 12, and this chapter is about the Great Revolt of 1857, which is like one of the most significant landmark events in the Indian national, freedom struggle or history maybe. So the freedom struggle actually starts after this. The Indian national movement we talk about actually starts after this. So basically this event has been a divide. कि इसके पहले जो थी आपकी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे चार्टर एक्ट्स आते हैं, फिर कैसे कैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेट हो रहा है, टेरिटरीज एक्वायर हो रहे हैं. बट दैट इज व्हाई एंड आफ्टर दिस यू सी देयर इज अ होल चेंज इन द पैटर्न ऑफ द इवेंट्स व्हिच अनफोल्ड. सो इसके बाद आपका देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है. 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट, क्योंकि रिवोल्ट से ब्रिटिश को ये चीज समझ में आई दैट इंडियंस आर नॉट हैप्पी विद वट एवर इज गोइंग ऑन हियर एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. यहाँ पे लोग अगेंस्ट हो चुके हैं ब्रिटिश के. तो ये सारी चीजें इस इवेंट से समझ में आई थी और इसीलिए ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा डिवाइड की तरह काम करता है कि इसके पहले आप सिर्फ ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में सुनेंगे, लेकिन इसके बाद जो एक्चुअली आप सुनेंगे तब आप देखेंगे कि अब जो ब्रिटिश था उनको ब्रिटिशर्स थे उनको सॉफ्ट होना पड़ा था क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि लोग रिवोल्ट कर रहे हैं इस चीज के खिलाफ एंड दे कुड नॉट अफोर्ड इट. सो उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होंगे, फिर धीरे धीरे कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट डेवलप होता है. सो देर इज दिस इवेंट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मॉडर्न इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So first we'll study that what different scholars have told about this revolt. So आप देखेंगे कि एक बहुत common opinion है that whatever the British scholars tell is थोड़ा negative, obviously because वो अच्छा पोर्ट्रे क्यों करेंगे इस चीज को. लेकिन जो इंडियन स्कॉलर्स हैं they have always like hailed the Indian revolt कि नहीं ये revolt has been a game changer, and actually it has been. So it is not like that Indian scholars are telling this has been a game changer because the whole administration was changed after that. So what is bigger than that? I mean आप सोचिए कि पूरे administration को change होना पड़ा just because of a revolt. So obviously this was like significant. Okay, not that because I'm an Indian, which is like obviously I know that I'm patriotic towards my country, so वो feelings होंगी, I can be biased, but I think this event is beyond biasness, right? So Sir John Lawrence, he felt that this revolt was purely a military outbreak and not a conspiracy to overthrow British rule. उन्हें लगा कि बस सिपाहीज खुश नहीं थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हुई and that is why एक military outbreak था. ये कोई conspiracy नहीं थी to overthrow British rule को हटाने के लिए. Now Sir John Lawrence कौन है? So Sir John Lawrence was the viceroy actually from I think 1864 to 10 to 15 years, 1879 maybe. So उनको ऐसा लगा कि यार 1857 की जो रिवोल्ट थी वो इतनी भी मतलब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए था. इट वाज जस्ट अ मिलिट्री आउटब्रेक. बट अगर आप इंडियन स्कॉलर्स की बात देखें देन दे हैव डिफरेंटली टेकन दिस रिवोल्ट, which I agree with kind of, and you can disagree, that's your opinion, and you can always tell your opinion in your comments below. I like to read different opinions so that you know different जब आप thought process देखते हैं तो आपको समझ में आती है कि किस किस एंगल से आप एक चीज को देख सकते हैं. So I will say कि please be a bit more active. I'll love that participation. So yes, Indian scholars tell like Veer Savarkar, he felt that the revolt of 1857 was the first war of Indian independence. Okay, कि Indian independence की पहली जो war है वो आपका revolt of 1857 है. Then S.N. Sen, he felt that 1857 revolt was part of the struggle for Indian independence. So S.N. Sen को लगता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल थी ये उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है. Okay, then R.C. Mazumdar, he felt that outbreaks before 1857, whether civil or military, were a series of isolated incidents ultimately culminated in the Great Revolt of 1857. So R.C. Mazumdar को लगता है कि 1857 के पहले जो आउटब्रेक्स हो रहे थे, जो हम इसके पहले पढ़ रहे थे, वेल्लोर म्यूटनी हो या फिर बाकी भी जो रीजनल रिवोल्ट्स थे, तो ये सारी तरीके के जो आउटब्रेक्स हो रहे थे वेदर सिविल और मिलिट्री, चाहे वो सिपॉइज के द्वारा की गई हो या कॉमन मैन के द्वारा,
it was a series of isolated incidents, which is I think a bit fair because क्योंकि आप देखेंगे कि हर जगह पे कुछ लोग उठते हैं एक पर्टिकुलर रीजनल इंटरेस्ट के लिए. It was not about the country, क्योंकि country वाली कोई फीलिंग थी ही नहीं, because it was not a country then. It was a different, region. अलग अलग regions थे. It was not India back then. So we can't blame people for having, regional interest. People will have regional interest because they belong to that region. It was not a country that people could have, emotion for the country or a patriotic emotion. So we can't blame people for that. ये यूनिटी इसीलिए आई क्योंकि मतलब लोग साथ में खड़े हुए पूरे देश के लिए, क्योंकि ये इशू कॉमन हो गया. एक पूरे एरिया में अगर एक इशू कॉमन हो जाता है तब लोग एक साथ खड़े होने लगते हैं, और यही हुआ इंडिया के साथ भी. एंड दैट इज वाई टुडे इंडिया इज देयर. इंडिया आज है क्योंकि एक कॉमन इशू हुआ एक पूरे रीजन में, और फिर ये पूरा रीजन मिलकर सामने आया उस चीज को फाइट करने के लिए. एंड दैट इज वाई आवर कंट्री स्टैंड्स हियर एज इंडिया और भारत. सो ये आरसी मजूमदार जो बोलते हैं उनका वही कहना है कि 1857 के पहले जो भी हो रहा था वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स थे, अलग अलग चीजें, अलग अलग इंसिडेंट्स थे. और अल्टीमेटली दैट द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 की सारी रीजंस मिलके आपके फाइनली 1857 का रिवोल्ट बने. So now we'll see different causes of the revolt, political, social, economic, military की क्या reasons रहे थे revolt के पीछे, कैसे ये revolt actually unfold हुई, causes behind it. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज ऑब्वियसली कि कुछ एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स तो डेफिनेटली रहे होंगे, और स्पेशली उन एरियाज में विच वेर अनजस्टली एनेक्स्ड, जस्टिफाइड रीजंस से जिनको एनेक्स नहीं किया गया था, वो रीजंस में एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लाइक बर्मा, असम, कुर्द, सिंध एंड पंजाब. तो इन एरियाज में लोग, ऐसा होता है ना कि लोग बैठे होते हैं बस कि आप बस बोलो और हम उठ के जाएंगे लड़ने के लिए. सो दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग इन दीज एरियाज, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज लाइक अब इलेजिटिमेट मीन से ब्रिटिश ने किसी भी तरीके से एनेक्स कर लिया तो लोग खुश नहीं थे ऑब्वियसली. सेकेंड जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्टर रहा है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लाइक वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट, क्योंकि चाहे आई मीन इमीडिएट रीजन सपोज मिलिट्री वाला रहा होगा, बट लाइक अगर हम पॉलिटिकल रीजंस देखें सारे एक होलिस्टिक वे में देखने की कोशिश करें, तो आई थिंक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बहुत ज़्यादा वो एंटी ब्रिटिश एक इमोशन को सेट किया था. वाई? बिकॉज ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेसन 6 लॉर्ड डलहौजी वाला जो चैप्टर है, तो आप एक बार वो देख सकते हैं. बट स्टिल मैं थोड़ा यहाँ बता देती हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था फंडा, कि नॉर्मली कोई भी मान लीजिए हिंदू रूलर है, ठीक है, तो वो हमेशा, अब मान लीजिए उनका कोई अपना बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी को जो उनके थ्रोन का सक्सेसर बने. उनके बाद कौन राजा बनेगा वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये बनेगा मेरा अगला राजा. लेकिन अगर उनके वो जो स्टेट है वो अगर ब्रिटिश के अंदर है, तब उनको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश से कि आप क्या मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ काइंड ऑफ. और अगर ब्रिटिश वालों ने परमिशन नहीं दी तो फिर वो जो रीजन है वो ब्रिटिश के अंदर आ जाती है फुल्ली, क्योंकि and this principle was called doctrine of lapse, because Lord Dalhousie felt that there was a strong difference between the right to inherit private property and the right to govern. So he felt that a person can, like an adopted heir, an adopted child can be given the right to inherit private property but cannot be given the right to govern. And that is why he brought doctrine of lapse. Basically कुछ नहीं था, he just wanted to annex more and more territories, तो उसके लिए नए नए rules निकाल रहे थे, that is it. but इसके वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, इतने ज़्यादा लोगों के ये इश्यूज हुए कि ऑब्वियसली लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर गुस्सा हो गया था. It produced grave discontent and alarm among the native principles कहाँ से आ गया native princes who were directly affected. ये जैसे हमने देखा है झांसी वाले में, हम देखेंगे एक्चुअली झांसी में यही हुआ था, उनका बच्चा छोटा था एज अ माइनर, तो उसमें भी ब्रिटिश वालों ने बोला था कि नहीं, इट कम्स अंडर अस, एंड दैट इज वाई आई थिंक रानी लक्ष्मीबाई खुद लड़ाई में उतर गई थी. सो यू नो लाइक दिस इज हाउ एक कहते हैं ना एंटी ब्रिटिश इमोशंस सेट हुआ. उनको समझ में आने लगा जो नेटिव प्रिंसेस थे कि इनका जो आइडिया है, इट इज नॉट टू हेल्प अस, इट इज टू हार्म अस काइंड ऑफ. इनको बस अपने फायदे चाहिए, ये हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो उनका अच्छा चाहता है वो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं करेगा उनके साथ. तो दिस इज हाउ जो रियल जो स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिश की वो दिखने लगी, क्योंकि पहले तो ये लोग बेवकूफ बनाते थे कि हम आपका फायदा करेंगे, हम आपके स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे सब्सिडरी अलायंस वगैरह में, और उसके लिए
मतलब आप ही से पैसे लेकर आप ही के स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे और फिर आपके पास पावर भी नहीं रहेगी. सो दिस इज हाउ दे यूज टू मैनिपुलेट. बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से क्या हुआ कि वो जो ग्लास था दैट ब्रोक, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं कि compassionate ग्राउंड है. देयर वाज नथिंग compassionate अबाउट इट. यू डायरेक्टली स्नैचिंग द राइट टू choose the successor of the king. तो obviously there is nothing compassionate and you cannot, like, आप बेवकूफ बना ही नहीं सकते. So yes, this has been a very, very significant political cause behind the revolt of 1857. Next, we'll see about the economic causes of the revolt. The economic क्या क्या reasons रहे थे? तो first, obviously, huge drain of wealth, the destruction of its industry, and increasing land revenue. पहली बात तो land revenues रोज रोज बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा issues हो रहे थे. फिर industries destroy हो गए, क्योंकि इनका फंडा ही ऐसा था कि ब्रिटिश का प्रॉफिट हो, इंडिया के प्रॉफिट से इनका कोई रिश्ता नहीं था. सो जो यहाँ के जो अच्छे प्रोडक्ट्स थे या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, बिकॉज दे वर लाइक सेलिंग अपने प्रोडक्ट्स सस्ते में, और यहाँ से बस वो लोग रॉ मटेरियल्स लेके जाके वहाँ पर बनाते थे. तो ऑब्वियसली यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे हैं और वहाँ से प्रोडक्ट बनाकर यहाँ पर महंगे में बेच रहे हैं. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ तो होगा ही. फिर इंडियन प्रोडक्ट्स को वहाँ पर भेजने नहीं देते थे, इतना हाई ड्यूटीज लगा के रखा था कि अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे इतने हाई ड्यूटीज थे कि आपके प्रॉफिट्स का मार्जिन ही कम हो जाता था, और वहाँ से सामान ये लोग लाते थे और यहाँ पे सस्ते में बेचते थे. तो जो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको चीपर अगर मिलेगा तो आप तो वो सामान लोगे, इंडिया का प्रोडक्ट क्यों लोगे? तो दिस वॉज हाउ द ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज हैपनिंग. और इसीलिए आई थिंक दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी भी दी थी इसकी. एनीवेज, ओके. सेकेंड इज हाई टैरिफ इन ब्रिटेन अगेंस्ट इंडियन गुड्स. एज आई सेड यू कि जो इंडियन गुड्स अगर ब्रिटेन जा रहे हैं तो वहाँ पे हाई टैरिफ लगा देते थे, ठीक है. और ब्रिटिश गुड्स फुल ऑन इम्पोर्ट हो रहे थे इंडिया में. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि उनके गुड्स हमारे पास आ रहे हैं सस्ते में, और हमारे गुड्स जब हमारे ही देश में महंगे बिक रहे हैं और वहाँ पे भी महंगे बिक रहे हैं क्योंकि उन्होंने ड्यूटीज लगा के रखे हैं. सो दिस इज हाउ दे वर ड्रेनिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया. थर्ड इज न्यू प्लांटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1833. सो 1833 में एक न्यू प्लांटेशन सिस्टम लाई गई जहाँ पे इंग्लिशमैन को परमिशन दे दी गई दैट दे कैन एक्वायर लैंड प्लांटेशंस इन इंडिया. So this actually had hit hard on the peasants, especially on the indigo plantations in Bengal and Bihar. तो बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट कर गया पेजेंट्स को, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश में इनका फंडा ये हो गया था कि इनको जितना ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ये देखते ही नहीं थे कि एक्चुअली में इस बार क्या बारिश हुई है कि नहीं, या फसल सही से हो रही है कि नहीं, कितना प्रॉफिट फार्मर को हो रहा है. दे डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग. सो दिस प्लांटेशन सिस्टम एक्चुअली बहुत ही बुरा हल कर दिया था, स्पेशली in the indigo plantations in Bengal and Bihar. So this was also one of the economic causes behind the revolt of 1857. Next, we will see the social causes of the revolt. So social क्या क्या causes थे? First is obviously indiscriminate assaults on Indians by Englishmen. Assaults होते रहते थे, परेशान किया जाता था Indians को by the Englishmen. Inferior treatment and all, everything. सेकेंड वॉज एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज. अभी क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत आ रहे थे इंडिया में ब्रिटेन से, और ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट किया जाता था इन द प्लेस ऑफ ओरिएंटल लर्निंग. मतलब जो हमारा जो नेटिव लर्निंग है, जो हमारे नेटिव एजुकेशन है जो इंडिया में था, उसको ना करके ये लोग अपना वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर ये सब प्रमोट करते थे. तो यहाँ के लोगों को डर लगने लगा कि मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो हमने पहले भी पढ़ा है. लोगों को ऐसा लगने लगेगा ना कि आप क्रिश्चियन मिशनरीज ला रहे हैं और वो हमेशा बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी है क्रिश्चियनिटी, कितना अच्छा वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर है. सो पीपल वर नॉट, पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि दिस इज नॉट आर सोशल काइंड ऑफ, नॉट सोशल एक्चुअली, बट दिस इज नॉट आर कल्चर. तो वो उनके अंदर वो डर हो गया कि मे बी वील लूज आर कल्चर लाइक दिस. सो ये भी एक चीज थी, very important social cause basically behind the revolt of 1857. Next is obviously the military causes of the revolt, because यहाँ पे जो ये जो revolt start हुई थी, this was started by the sepoys. So obviously there has to be some military causes, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ तरीके का तो fire होना होगा, तभी they started this whole revolt with such a massive aggression. तो फर्स्ट एंड फर्स्ट वाज लो सैलरी एंड पुअर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन. तो सैलरी कम मिलती थी इन कंपैरिजन टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, एंड द प्रमोशन एस्पेक्ट्स वर वेरी पुअर. मतलब एक बंदा जो इंडियन है वो ज्वाइन किया और जो एक
इंग्लिश है उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनकी प्रमोशन जल्दी होगी, हमारी नहीं होगी. Second was least respect to the social values and religious sentiments of Indian sepoys. This we have already seen in the Vellore Mutiny also, that they used to say कि shave the chin, trim the mustache, फिर आपका टर्बन इंट्रोड्यूस कर दिया विच वाज रिजेंबलिंग यूरोपियन हैट. सो दिस वाज काइंड ऑफ, और भी कुछ कुछ था कि उन मना कर देते थे नहीं आप ये कैरी नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. तो दे डिड नॉट शो रिस्पेक्ट टू द सोशल वैल्यूज एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स. तो दिस ऑल्सो काइंड ऑफ हर्ट द इंडियन सिपॉइज बिकॉज ultimately everybody is somewhere attached to their culture, and if somebody is and you kind of don't respect it, then obviously they feel hurt about that, and that was what was happening with Indian sepoys as well. Third factor, military factor, was order that abolished the foreign allowance or batta when they served in foreign territories. तो क्या होता था कि जब भी कोई सिपॉइज जो है वो फॉरेन टेरिटरीज में अगर सर्व करते थे तो उनको एक फॉरेन अलाउंस मिलती थी जिसको बट्टा भी बोलते थे. तो इसको एबॉलिश कर दिया गया. सो दिस ऑर्डर एक्चुअली हैड लाइक ऑब्वियसली दे वुड बी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस दैट दे आर सर्विंग इन फॉरेन टेरिटरीज. You take anywhere the Indian supplies and then you say that no, we are not going to give you the foreign alliance. So obviously they'll be discontent with that. They'll not be happy with about it. और यही हुआ कि वो लोग खुश नहीं थे कि यार तुम कहीं भी हमसे काम कराते हो, फिर पैसे देने के मामले में आप अबॉलिश कर दिया आपने फॉरेन अलायंस. एटलीस्ट उन्हें कुछ पैसे मिल रहे थे तो वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता होगा कि चलो घर में कुछ पैसे जा रहे हैं. बट दिस वाज आल्सो नॉट हैपनिंग. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉज ऑफ द रिवोल्ट. सो बेसिकली तकलीफ बहुत सारी थी. दे वर नॉट हैप्पी, दे वर वेरी डिसकंटेंट, एंड all that needed was only a spark to set it afire. तो बस एक इन्हें कुछ छोटी सी फैक्टर चाहिए थी जिसकी वजह से they could start revolting, and that is what happened with the greased cartridges which we are going to read now. So the spark was provided by the greased cartridges. So क्या हुआ? There was a new rifle introduced, that was a Enfield rifle. First time it was introduced in the army, and these rifle cartridges had a greased paper cover. एक greased paper cover थी जिसके end को ऐसे bite करना पड़ता था before the cartridge was loaded into the rifle. Now rumor spread that the grease was composed of fat taken from beef and pig. Okay, तो जो ग्रीस को आपको ग्रीस पेपर कवर था जिसको आपको बाइट करके लोड करना पड़ता था राइफल में, वो ऐसे कंट्रोवर्सी फैली कि जो ग्रीस था वो उसमें बीफ और पिग का फैट था. तो ऑब्वियस है कि जो हिंदूज हैं वो बीफ नहीं खाते हैं और आप मुंह में ऐसे बाइट करके डाल रहे हो तो वो काइंड ऑफ आपने डाल लिया मुंह में, और मुस्लिम्स पिग नहीं खाते तो उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं. सो काइंड ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स हिंदू और मुस्लिम दोनों से पॉइस के टेरिबली वुंडेड थे क्योंकि उनको बहुत ही बुरा लगा इस चीज़ का कि ऐसा क्यों किया गया. नाउ देर इज अ वेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट इट कि मे बी दिस रूमर वॉज स्प्रेड ऑन पर्पस, क्योंकि आप सोचने वाली बात है दैट अगर कार्ट्रिज बना भी था तो ये बीफ और पिग की कंपोजिशन से क्यों बना होगा. I mean, we could just think about it. There's a conspiracy theory about it that this was done on purpose, क्योंकि बहुत लो चांसेस हैं कि बिल्कुल इसी कॉम्बिनेशन से जिसमें हिंदू मुस्लिम इमोशंस हर्ट हो, उसी कॉम्बिनेशन बीफ और पिग के कॉम्बिनेशन से ही उस ग्रीस मतलब होता है ना वो फैट लिया गया हो. तो आई एम नॉट श्योर कि क्या सच है क्या झूठ है. आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. लोग ऐसा एक है rumor है कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ जानबूझकर फैलाई गई थी जस्ट टू that bring that spark which we're talking about, so that people could tell ki yes this is a problem, then ye to nahi chalega kind of. And that was what happened actually. So yes, the Hindu and Muslim sepoys were feeling so terribly wounded, और बस लड़ाई से बस. So the revolt basically started on 29th March 1857 at Barakpur. How? So a single sepoy, Mangal Pandey, who is a very popular figure, Amir Khan ki movie bhi hai, you can see that. And watch that. So Mangal Pandey, he refused to use these, Enfield rifles, and obviously there was a dispute, and in that dispute he killed his officer also single-handedly. उन्होंने अकेले मार भी दिया, and after that he was hanged, and the regiment he belonged to was disbanded. तो जो regiment में वो थे उनको disband कर दिया गया और मंगल पांडे सर को hang कर दिया गया. And then after that obviously जो ये गुस्सा था among the sepoys, this obviously got more sparked. उनको और गुस्सा आया कि obviously a person who revolted against this was hanged, and वो emotion set हो गया उसके बाद. Then in May 1857 in Meerut,
85 sepoys of the 3rd Cavalry Regiment were sentenced to long terms of imprisonment for refusing to use the greased cartridges. So obviously एक ने किया तो दूसरी जगह भी होगा. So that was how it happened actually. In May 1857 मेरठ में 85 सिपाही थे 3rd Cavalry Regiment के, उन्होंने भी मना कर दिया हम भी नहीं यूज करेंगे और इसके लिए उनको जेल में डाल दिया गया कि ठीक है आप नहीं यूज करोगे तो फिर आप जेल में रहो. फिर 10th मई 1857 को ये मेरठ वाले रेजिमेंट के ही सिपाहीज दे ब्रोक आउट इन ओपन रिबिलियन कि बस बहुत हो गया एंड दे शॉट देयर ऑफिसर्स, रिलीज देयर फेलो सिपाहीज जिनको जेल में बंद कर दिया गया था एंड हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली कि अब हम दिल्ली जाएंगे. जनरल हेविट द ऑफिसर कमांडिंग एट मेरठ वाज हेल्पलेस. ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा रेजिमेंट अगर निकल रहे हैं, सारे सिपाहीज एक साथ निकल रहे हैं तो एक ऑफिसर कैसे उनको कंट्रोल कर सकता है. सो जनरल हेविट ही वाज द ऑफिसर हु वाज कमांडिंग at Meerut, but he could not do anything. Next. So on 12th May 1857, the city of Delhi, it fell into the hands of the rebellious soldiers. तो मेरठ से निकल के सारे सोल्जर्स पहुंचे दिल्ली सुबह सुबह और उसके बाद 12th मई को थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई और उसके बाद जो दिल्ली थी वो सोल्जर्स के अंदर आ गई जो गए थे वहां पे रिबल वाले. लेफ्टिनेंट विल्टश बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिल्ली could not prevent the mutineers. Obviously, see, when there is a huge crowd, like a huge lot of people अगर revolt करने गए हैं तो एक single इंसान will not be able to prevent that because he would not have that support or he will need some backing to prevent that lot of people. So Lieutenant Viltas Bai, he was the officer in charge of Delhi, but he could not prevent the mutineers. And mutineers proclaimed the aged nominal king Bahadur Shah II, Bahadur Shah Zafar of the Mughal dynasty as the emperor of India. तो mutineers ने यहाँ पे बहादुर शाह टू जो थे हमारे मुगल रूलर उनको एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे इंडिया के एम्परर हैं. सो सी एज वी हैव ऑलरेडी सेड देयर हैज टू बी अ फिगर, एक फिगर चाहिए होता है, एक फेस चाहिए होता है हमेशा. तो ये फेस दिया एटलीस्ट इन्होंने इस रिवोल्ट में कि एक फेस दे दिया कि ये हमारे देश के एम्परर हैं. भले उनका कुछ काम नहीं था, वो बूढ़े हो चुके थे, नॉमिनल किंग थे लिटरली, लेकिन फिर भी एक फेस मिल गया कि यस this is our ruler, you are not. So that is what the sepoys did. नेक्स्ट विल सी रीजन वाइज कि कैसे कौन से रीजन में कौन से लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे इस पूरे रिवोल्ट में. सो दिल्ली ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो जहाँ से शुरू हुई चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली वाज कि दिल्ली में ऑब्वियसली द रूल वाज नॉमिनली इन द हैंड्स ऑफ बहादुर शाह as you can see the picture here, but the real control was exercised by General Bakht Khan. So actual काम जनरल बख्त खान कर रहे थे, लेकिन एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर को, just to give a proper distinction that yes India belongs to us now. Okay. And but उसके बाद obviously they were suppressed and दिल्ली को recapture कर लिया गया by September 1857 by Nicholson, Wilson, Baird Smith and Neville Chamberlain. So इन्होंने recapture कर लिया obviously because after that the British like एक बारी जब पता नहीं था तो obviously एक एक लेफ्टिनेंट वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए. But once the revolt broke out and the Britishers are aware about it, so they will like go with all their technologies, weapons और सब कुछ लेके चलेंगे वो लोग अपना पूरा लॉट लेके. तो फिर उसके बाद तो I think it was hard to fight them, but I think the best part was the bravery shown and the message provided to the British of this revolt. Okay, कि यही इस revolt की best part है कि एक message दिया गया कि we can revolt against you, and that also at a popular level. It was not an individual or sporadic thing. सारे regions में एक साथ हो रहा था. तो that is the most significant aspect of this revolt. तो दिल्ली recapture हो गई by September 1857 and Bahadur Shah too, he was arrested and deported to Rangoon where he remained in exile till he died in 1862. So 1862 में Bahadur Shah too died. Okay. So in Kanpur, the revolt was led by Nana Sahib, who was the adopted son of Bajirao II, the last Peshwa. As you can see, here's the picture of Nana Sahib, and he proclaimed himself the Peshwa कि now I am the Peshwa, who was actually not allowed. जैसे कि मैंने कहा था आपको doctrine of lapse, तो adopted son थे ये, इनको नहीं मिली permission, तो ये नहीं बन पाए थे पेशवा. So obviously there was anger जो इन्होंने दिखाया. इन्होंने फिर जब revolt हुआ तो he led the revolt in Kanpur and he was supported by two of his lieutenants who were Tantia Tope and Azimullah.
Okay, as you can see the picture of Tantia Tope here. So, Sir Hugh Wheeler, the commander of the British garrison at Kanpur, he surrendered on 27th June 1857. वो कुछ नहीं कर पाए. But obviously at the last it was recaptured by the British commander Sir Colin Campbell. So आप देखेंगे कि recapturing की जब भी बात आएगी तो Sir Colin Campbell का नाम आएगा. So he was like a very efficient British कमांडर आई थिंक एंड उन्होंने ये सारी रिकैप्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. तो ह्यूग विलर ने तो सरेंडर कर दिया था 27 जून 1857 को, बट दिस वाज रिकैप्चर्ड बाय सर कॉलिन कैंपबेल. ओके, next we'll see about Lucknow. So in Lucknow, the principal person responsible for the revolt was Begum of Oudh. So these all people, जितने भी आप लोगों के बारे में यहाँ पे देख रहे हो, these all suffered because of British administration. कुछ ना कुछ इन सबके साथ हुआ था और इसीलिए ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी. इनको दुख निकालने का एक इवेंट, एक मोमेंट मिल गया था. So Henry Lawrence, the chief commissioner, he was killed in a bomb blast during the fight. But again, Sir Colin Campbell, he at last suppressed the revolt. And this man is Sir Colin Campbell. Okay, so in Lucknow, the prominent person who was responsible for the revolt was Begum of Oudh. So you should know this. कभी कभी mapping के लिए दे देते कि कौन सा इंसान कौन से region के लिए popular था for the revolt. नेक्स्ट इन झांसी, आई थिंक इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पीपल ऑलरेडी नो दिस. बट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, द विडोड क्वीन ऑफ गंगाधर राव, played a heroic role in Jhansi. इनकी बहुत पॉपुलर स्टोरी है, वेरी ब्रेव लेडी. एंड she actually, the story, as per the story it goes, is like she actually carried her baby on her shoulders, पीठ में ऐसे बांध के वो लड़ने जाती थी. एंड इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ऑब्वियसली, गंगाधर राव की. एंड उसके बाद ही इनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया था डलहौजी ने, जिसके वजह से इनका जो ये लोग खुद अपने सक्सेसर को चुन ही नहीं पाए थे और ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गई थी झांसी. सो दिस वाज लाइक सीवियरली डिस्कार्डेड बाय रानी लक्ष्मीबाई. एंड व्हेन द रिवोल्ट हैपेंड, शी participated with like all heroism in it, and she was joined by Tantia Tope, जो कानपुर में भी important role play किए थे for Nana Sahib. So he helped Rani Lakshmibai as well, and with the combined efforts of Rani and Tantia Tope, Gwalior was captured. Okay, but again, Sir Hugh Gross, he defeated Tantia Tope and stormed Jhansi on 3rd April 1858. तो Sir Hugh Gross आए, उन्होंने तांत्या टोपे को हराया और फिर झांसी में घुस गए 3rd April 1858 को, और उन्होंने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया. Okay, so Rani of Jhansi died a soldier's death on 17th of June 1858. 17th June 1858. Rani of Jhansi, she died like fighting obviously. And Tantia Tope, he was captured and hanged. So Tantia Tope पे already कानपुर के लिए charges लगे हुए थे, so he was captured and hanged. Okay, and 17th June is my mother's birthday, so yes, that's beautiful. Okay, and Rani Lakshmibai is an example everybody knows, बचपन से poems भी पढ़े हमने, so I think yes, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. Yes, let's proceed to the next slide. And the last important region was Bihar. So in Bihar, unique thing was कि ये बहुत 80 years के थे जब ये revolt में participate कर रहे. So that was like so much heroic. I mean, हम 20s में भी नहीं कर पाते इतने काम जिन्होंने इतने 80s में किए थे. So he was the chief organizer of the revolt in Bihar, and he was actually a ruined and discontented zamindar of Jagdishpur near Oudh. So as I've already said, any person you see here who was like the main face of the revolt in a region, they were who were actually suppressed by the British, और कुछ तो गलत हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से obviously उनके अंदर बहुत गुस्सा था जिसको दिखाने का टाइम उनको मिला रिवोल्ट के समय में. And that is why they participated with so much aggression. So you can see that different regions, different people from different regions were showing the same aggression. So that showed that how much discontent or gussa people had for British in India. And Kubar Singh, he also died on 27th April 1858 at Jagdishpur. And at the end, obviously, the 1857 revolt came to an end with the victory of the British. It was suppressed, and Viceroy Canning, he proclaimed peace throughout India. So, but we'll see that how this event has been significant and what were the after effects of this 1857 revolt.
सो विल सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई द रिवोल्ट फेल्ड। आई मीन ऑब्वियसली एंड में जीत अगर ब्रिटिश की हुई थी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए इस रिवोल्ट से। तो पहली बात तो ये है कि इट फेल्ड टू एम्ब्रेस द होल ऑफ इंडिया। मतलब ऑब्वियसली देर वॉज पॉपुलर सेंटिमेंट और काफी सारे लोग मिलकर आए थे लड़ने के लिए, बट वो पूरी यूनिटी जो बोलते हैं वो नहीं थी, बिकॉज मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स एंड मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस दे वर अगेंस्ट द रिवोल्ट। उनको उनको मतलब नहीं था, उनको फायदे कुछ हो रहे थे अपने ब्रिटिश के वजह से, जिनको नुकसान नहीं हो रहा था लिटरली दे वेर अगेंस्ट। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट इफ दे कम टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज, सो अल्टीमेटली फायदा तो सबका होना है। But they were not understanding that. They were like, हमें problem नहीं है तो हम क्यों लड़े? So this was happening, and that is why the revolt, failed to impress the whole of India. Second was lack of interest shown by the intellectuals. Again, the same problem. I don't have an issue. Why will I go to fight? So that was the issue. तो intellectuals ने भी ज़्यादा interest नहीं दिखाया था इस revolt में. Then resources of the British Empire were far superior. Obviously हमारे पास resources नहीं थे उतने ज़्यादा अच्छे. Fourth factor was it lacked a carefully concerted general plan or a strong central organization to plan the movements of the army. So यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा movement हो रही थी, एक जगह से दूसरी जगह आर्मी जा रही हैं, fight कर रहे हैं, तो it was important that there has to be a proper planning of that, and also there has to be some organization or some institution which was actually planning everything, ताकि लोगों के पास direction हो कि अच्छा अब यहाँ से यहाँ जाएंगे या फिर ऐसा हो गया तो ये करेंगे. So that planning is required to make a revolt successful at such a huge level. Okay, so that was not there. So this is also one of the reason for the failure of the revolt. Fifth reason was British possessed better equipment. Of course, we didn't have that much of equipment. कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो ब्रिटिश के पास तो अच्छे अच्छे equipments, technology सब कुछ थे. So that was also a plus for the British. And sixth cause was British were aided by new scientific inventions such as the telegraph and postal communication. So इनके पास ये telegraph, postal communication था, तो इनकी communication जल्दी जल्दी पहुंच जाती थी. हमारे पास ऐसा नहीं था, तो हमारे को एक से दूसरी जगह कुछ बात पहुंचानी हो तो उसमें समय लग जाता था, जो ब्रिटिश को नहीं लगता था. So this was also an added advantage, for the British. So this all causes actually kind of played a major role for the failure of the 1857 revolt, which I don't think is a complete failure, but yes, because ultimately the success belonged to the British, so we can say that the revolt failed and these were the reasons behind it. Next, we'll study about the significance and effects of the mutiny. So, significance, obviously, we know that it, shaked the very foundations of British rule. तो जो British rule का foundation था उसको पूरी तरीके से हिला दिया, because it exhibited the popular character. सारे लोग मिलकर आए लड़ने, तो ये दिखाया कि people were not happy with the British. Second was common people rose up in arms. इवन इट वॉज स्पोराडिक एंड इनकन्सिस्टेंट, मतलब हर जगह तो नहीं सारे उठ के आए थे, स्पोराडिक था, इनकन्सिस्टेंट भी था, बट स्टिल कॉमन पीपल रोज अप इन आर्म्स. मतलब जो भी था जिसके पास चाकू भाला सब लेके भाग रहे थे लोग. सो दिस वाज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्मली ब्रिटिशर्स यूज टू शो दैट we are more organized, civilized, and you people are not aware of all this, so we will do good to you. हम आपका भला करेंगे. So ये जो एक ग्लास थी ये तो ब्रेक हो गई कि नहीं, people are not happy with whatever you're giving us. So this was why we say that this revolt shaked the very foundation of British rule. Second was Hindu Muslim unity. Everyone was like united in this fight. ऐसी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम वाली चीज ही नहीं हो गई, क्योंकि पहली बात तो र्यूमर ही ऐसा फैला गया था बीफ और पिग वाला, तो यहाँ पे दोनों के ही सेंटिमेंट्स हर्ट दिखाए गए, तो ऑब्वियसली दोनों मिलके लड़ रहे थे. इट वाज वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं आ रहे थे यहाँ पे. And the most important effect, if we talk about, of the whole mutiny, the whole revolt of 1857, was the fundamental change in the character of Indian administration. As I already talked about in the beginning, that the administration completely changed because of this revolt. ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म ही कर दिया गया कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप बर्बाद करो बस. तो ब्रिटिश को लगा मेरे हाथ से चला ना जाए, इतने पैसे वाली कॉलोनी है मेरी, तो the administration was transferred from the East India Company to the Crown by the Queen's proclamation of 1st November 1858. तो 1st November 1858 को Queen ने proclaim किया East India Company को टाटा बाय बाय, and we will take the responsibility of India now. And Governor General, he received the new title of Viceroy, and the first Viceroy of the country was Lord Canning. जो इसके पहले Governor General थे वो Viceroy बन गए. तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे एक revolt of 1857 ने पूरी काया पलट कर दी of the Indian administration. And Lord Canning, he proclaimed a new government जो Queen Proclamation के हिसाब से आई at Allahabad.
you should know this location. On 1st November 1858, in accordance with the Queen's Proclamation, which is called the Magna Carta of the Indian people. Okay, तो इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं ऑफ द इंडियन पीपल, क्वींस प्रोक्लेमेशन को, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया दैट वी विल नॉट, यू नो, इट डिस्क्लेम्ड एनी एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी, कि नहीं चाहिए, अब हम लोग नहीं करेंगे एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी. एंड इट प्रोमिस्ड रिलीजियस टॉलरेशन, कि हम अब रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी रिस्पेक्ट करेंगे जो नहीं दिखाया जा रहा था पहले. थर्ड, इट गारंटेड द राइट्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस, कि आपके राइट्स को भी ध्यान में रखा जाएगा. फोर्थ, इट प्लेस्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू हर सब्जेक्ट्स, इंडियंस एंड यूरोपियंस. वो जो इन्फीरियर ट्रीटमेंट हो रही थी, उस सारी चीज़ों को ये किया गया कि नहीं नहीं, अब हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे. तो जितना आप देख रहे हो कि जितने इश्यूज थे, जो भी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोग रिवोल्ट कर रहे थे कि नहीं, इंडियन प्रिंसेस के राइट्स छीने जा रहे हैं, उनको अपने सक्सेसर्स चूज करने नहीं मिल रहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, और टेरिटरी भी ले ली जा रही है उनसे, फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए जा रहे थे, फिर टेरिटरीज ऐसे ही एनेक्स हो रहे थे, फिर वो इंफीरियर ट्रीटमेंट मिल रहा था. तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया गया इन द क्वींस प्रोक्लामेशन, ताकि इंडिया को फिर से कॉन्फिडेंस आ जाए ब्रिटेन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस पर. नेक्स्ट वी कैन सी द मैप हियर, और जिसमें जिसमें ये डायमंड एक्चुअली लगा हुआ है. वन सेकेंड, दिस वन. These were the places where the Great Revolt of 1857 was vigorous. सबसे ज़्यादा भयानक तरीके से अगर Revolt of 1857 कहीं चला है तो ये सारी places पे चले हैं. So first we can see Meerut, obviously हमने पढ़ा था, जहाँ पे सारे सिपाही उठ के बाद में रिवोल्ट कर दिए थे और फिर सीधा दिल्ली गए थे. Then दिल्ली तो ऑफ कोर्स दिल्ली वाज द प्राइम प्लेस, जहाँ पे आकर मेरठ वाले सोल्जर्स ने बोला कि नहीं, नाउ द रूलर ऑफ द एम्परर ऑफ इंडिया इज बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर. देन बरेली, देन लखनऊ. ओके, देन कानपुर लिखा है, ये मतलब कानपुर वाला जो है जगह, कानपुर. देन झांसी, ऑफ कोर्स रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, उनके ही रीजंस थे ये. रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे दोनों मिलकर यहाँ पे इसको अपने अंडर ला रहे थे. फिर बनारस. ओके, एंड इधर आपका बैरकपुर एंड कोलकाता. सो इट स्टार्टेड इन बैरकपुर, इफ यू रिमेंबर. मंगल पांडे रिफ्यूज्ड एंड at Barakpur, that I will not use this, and then he killed his officer, and of course this is how the revolt actually started. Okay, so these places are very important for Great Revolt of 1857, and you should know the location of it. Okay, so let's proceed. So the chapter ends, and now we will have some practice questions. So who among the following considered the revolt of 1857 as the first war of Indian independence? So in the start of the chapter, I think we started with this कि nature of revolt में क्या क्या scholars ने क्या क्या बोला है. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is Veer Savarkar. Okay, so Veer Savarkar told that the revolt of 1857 is the first war of Indian independence. Next question is, which of the following incidents sparked off the revolt of 1857? Okay, so first is exploitation of the Indian economy by the British. Second, the doctrine of lapse, followed by Dalhousie. C is activities of the Christian missionaries, and D is the episode of greased cartridges. So please pause the video and we'll discuss the answer. ओके, सो एज वी हैव सेड कि यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल, एवरीथिंग. बट कौन सा ऐसा एक इवेंट था, एक इंसिडेंट था जिसने स्पार्क किया, स्पार्क की तरह एक्ट किया, इमीडिएट कॉज? तो दैट वाज द एपिसोड ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस. जो न्यू एनफील्ड राइफल आए, उसके जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस थे, तो उसमें कहा गया कि जो यू नो उसको बाइट करना पड़ता था बिफोर लोडिंग इनटू द राइफल, एंड इट वाज सेड दैट द grease contained fat from beef and pig. So that is why the revolt started. Hindu Muslim के sentiments were hurt, and then the revolt started कि नहीं, हमें नहीं use करनी है cartridges. Next is the sepoy who refused to use the grease cartridge at Barakpur was. Very easy question. Please pause the video and I'll discuss the answer. आप पूरा ही सारा solve कर लो and then we'll discuss the answer at once. Okay. So the answer is first question का Mangal Pandey, of course, and second the Queen's proclamation was read by Lord Canning at Allahabad. ये मैंने लास्ट में बोला भी था कि ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे आपका इलाहाबाद. ठीक ठीक, बस हो गया, इतना ही लिखना है. वाओ.
Amazing. Beautiful. Okay, and now we'll see the match the following. बहादुर शाह कौन से प्लेस से एक्चुअली थे ये? तो ये थे आपकी दिल्ली से. नाना साहेब, Nana Sahib was from Kanpur. Then Begum of Awadh, she was from Lucknow. Lakshmi Bai, Jhansi, and Kumar Singh, he was from Bihar. So these were the prominent faces of the revolt in different regions. Okay, so आपको मैंने कहा था कि ये आपको match the following करके आ सकता है. So this is where the chapter ends. I hope you liked the video, and if you did, please provide your comments. Please, please, please. Okay. And if you're new to the channel, I would request you to please subscribe to the channel. I so need you, please. Okay. And बस इतना ही. आप जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत सारा थैंक यू, और जो नए सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं उनको भी बहुत सारा थैंक यू. And I will see you in the next video. So thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye bye.